Good morning, everyone. My name is Vanshika from class 12 with today's news headlines. Pauluri Sabha Rao honored with the Aryabhatta Award for Astronautics contribution. New archaeological discoveries unveil Telangana's ancient heritage. Indian Navy conducts Purvi Lahar mega exercise to test maritime preparedness. PM Modi praises 2550th Bhagwan Mahavir Nirvan Mahotsav. Sports news. Gukesh had just 17 H's name in chess history at youngest challenger. Red Bull's Max Verstappen claims made in Chinese Grand Prix victory. Importance of the day. April 23rd. World Book Day and Copyright Day. April 23rd, Hanuman Janma Divas. This festival is celebrated on the full moon day of the Hindu month of Chaitra in मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स. हनुमान जन्म दिवस पर पूरे विद्यालय को हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू. Good morning, everyone. My name is Samiksha Garsa from class 9th PM. Today I deliver a speech on ecosystem restoration. Ecosystem restoration is essential for many reasons. It helps replenish the number of species in an ecosystem. When an ecosystem declines, there are more disease outbreaks and change in food webs. While animals also struggle to find enough resources, ecosystems also need restoration because they often fail to recover after catastrophic events. The goal of ecosystem restoration is to improve biodiversity and its health. Efforts are made to repair damages caused by humans and natural disasters. To do this, we need many volunteers willing to dedicate their time to the task. The first thing that an ecosystem restoration team will do is assess the damage and then develop a restoration plan. They would also map out all the human-made structures in the area and then survey them for hazardous materials. They would try to keep these structures intact as much as possible because they can often be used in the future of things such as trails or wildlife corridors. Many of the natural habitats that animals live in today have been converted for other land uses or damaged by human activities. The need for these animals is more significant than ever, but restoration of their habitats and the species they rely on can be complex. There are many things that humans can do to make it easier on these animals, such as protecting and restoring critical habitat patches, improving outdoor areas for wildlife, and knowledgeable removal of invasive species. To conclude, restoring the ecosystem plays a vital role in protecting our Mother Earth. By restoring the balance of natural habitats and ecosystems, animals can live in areas that best suit their needs. It is our responsibility as humans to save our nature. Thank you. Have a good day. सुप्रभात. मैं दिव्यांशी कक्षा 9वीं की छात्रा आज हनुमान जन्मोत्सव के पर्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है. भगवान हनुमान भारतीय महाकाव्य रामायण के एक केंद्रीय पात्र भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति के लिए पूजनीय है. अपनी अद्वितीय शक्ति, निष्ठा और हनुमान जी को साहस और निस्वार्थता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है. उनके कारनामे विशेष रूप से सीता माता की खोज में और रावण के खिलाफ युद्ध में भगवान श्री राम की सहायता करने, संपन्न और धार्मिकता के आदर्शों के प्रतीक हैं. हनुमान जन्मोत्सव एक हिंदू पर्व है. यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है. विष्णु जी के राम अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई, जिससे रावण ने अपनी मोक्ष प्राप्ति हेतु शिव जी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु कोई उपाय बताएं. तब शिव जी ने राम के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची. शिव जी की लीला के अनुसार उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिलवा सके. इस कार्य में श्री राम का साथ देने हेतु स्वयं शिव जी के अवतार हनुमान जी आए थे.
जो कि सदा के लिए अमर हो गए। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए उन्हें हनुमान नाम दिया गया। हनुमान जी के गुरु इनकी माता भगवान शंकर, सूर्यदेव और मतंग ऋषि थे। हनुमान जन्मोत्सव का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो अनादिकाल से मनाया जा रहा है और अनंत काल तक मनाया जाएगा। हनुमान जी के कुल 108 नाम हैं। हनुमान जयंती को एक बड़े जश्न के रूप में मनाया जाता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। Now I would like to invite Lokendra sir to say some word for us. Respected stage with a venerable heart and soul of prosperity and wish of the nation's progressive way. And dear students and colleagues, very good morning to all of you. आज हनुमान जी का जन्म दिवस है, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को और फोर फादर्स के वैल्यूज को संरक्षित करके उनको आगे वेजिटेट करना और उनका संरक्षण करना। आप सभी भी हनुमान जी के ही रूप हो, वो सारी नैतिकता आपके अंदर है जो होनी चाहिए, और ये हमारा वैकल्पिक नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी यह फर्ज है कि हम अपने सभी नैतिक मूल्यों को, सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखें। तो उसके उपलक्ष्य में आपको मैं एक छोटा सा काव्य गीत सुना देता हूं। युगों युगों से दुनिया चलती जिसके दिव्य प्रकाश में, युगों युगों से दुनिया चलती जिसके दिव्य प्रकाश में, पुरखों की वह पौरुष गाथा, पुरखों की वह पौरुष गाथा, अजर अमर इतिहास में, भारत के इतिहास में। अपना बल ही अपना वैभव कुरुक्षेत्र मैदानों में, विजय लिखी थी खड़ग नोक पर शतहूणी तूफानों में। अजर अमर हिंदू संस्कृति है जलथल में आकाश में, भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में। राज्य सैकड़ों रहा विदेशी पर अखंड यह परिपाटी, मिट गया मिटाने वाला इसको तेजो में इसकी माटी। अमर अमिट हिंदू संस्कृति है जनमन हृदय आकाश में, भारत के इतिहास में। अच्छा, अब ये दो लाइनें ना, ये हमारे करंट एरा के लिए, जिसमें हम हमारी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो ना करें, है ना, हमारी जो भारतीय संस्कृति उसी को फॉलो करें। भौतिकता से त्रस्त विश्व की एकमात्र भारत आशा, परमानंद शांति की जननी पूर्ण करेगी अभिलाषा। यत्न संगठित बने मिल के पत्थर विश्व विकास में, भारत के इतिहास में। अंतिम लाइन, there should be individuality, after that integrity and then collective efforts, है ना। तो व्यष्टि समष्टि सृष्टि जीवन में कलमल आहत मर्यादा, हिंदू संस्कृति संस्कारों से दूर करेगी हर बाधा। पतित पावनी संस्कृति गंगा जनमन हृदय आकाश में, भारत के इतिहास में। धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। सर, हम आपके इस ज्ञान के लिए सदा आभारी रहेंगे। स्टैंड अप ऑल ऑफ यू, सिट डाउन।
I would like to invite Director Sir to say some word for us. सम्मानित स्टेज, हनुमान जयंती के महा उत्सव के उपलक्ष्य में मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अभी आपने लोकेंद्र सर के मुखारविंद से एक गायन के माध्यम से हनुमान जी का गुणगान किया और ये बताने की कोशिश की कि शिक्षा हमें क्या सिखाती है। शिक्षा हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए उसको आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम शिक्षा करती है। भारत सनातन संस्कृति का अनुयायी है और ये कहते हैं कि हनुमान भगवान का सबसे अद्भुत, अनूठा, निराला भक्त था और वो अपने आप को हनुमान भगवान का दास कहलाता था। एक बार माता सीता से उसने पूछा कि हे माते, ये आप सिंदूर क्यों लगाते हो? हनुमान जी ने प्रश्न पूछा माता सीता से कि आप ये सिंदूर क्यों लगाते हो? तो सीता ने बड़े सहज और सरल शब्दों में कहा कि हे हनुमान, ये जो सिंदूर है, ये सिंदूर लगाने से भगवान की आयु बढ़ती है। जो मेरे प्रभु राम हैं, जो मेरे स्वामी हैं, मैं जिनकी अर्धांगिनी हूँ, तो राम की उम्र बढ़ाने के लिए मैं क्या करती हूँ? सिंदूर लगाती हूँ। अगले दिन होता क्या है कि हनुमान अपने पूरे शरीर पर और क्या लगा लेता है? सिंदूर, और सिंदूरी बन जाता है और पूर्ण शरीर पर सिंदूर लगा करके और राम दरबार में प्रस्तुत हो जाता है। दरबारी देख करके हतप्रभ रह जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं कि ये क्या हुआ गया। तो पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? तो हनुमान ने जवाब दिया कि सीता माता अपने प्रभु की आयु बढ़ाने के लिए सिंदूर लगाती है अपने माथे पर, तो मैं मेरे प्रभु की उम्र बढ़ाने के लिए पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया ताकि मेरे प्रभु अजर अमर हो जाए। तब से हनुमान जी के शरीर पर सिंदूर जो लगाते हैं ना अपन, हनुमान जयंती पर हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं, ये एक वाक्या था। अब मैं उन बच्चों के लिए कि हमें एक छोटी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारी आर्ट की छात्रा नृत्य में फेस्ट कंटेंट में उसका सिलेक्शन हुआ था और उसको अंडमान निकोबार द्वीप मिला था। वहाँ हमने उसको नहीं भेजा। खुशी की बात यह है कि अब की बार उसको इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेज बेंगलोर में उसका सिलेक्शन हुआ है नृत्य में, नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो एक छोटे सी तलैठी से निकल करके और बेंगलोर जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में हमारी स्कूल के बच्चों का जब दाखिला होता है, हमें बड़ा सुकून मिलता है, खुशी भी होती है। तो मैं उन बच्चों, उन लड़कियों के लिए विशेषकर ये संदेश देना चाहूँगा कि जिन बालिकाओं की मैथ्स कमज़ोर है और वो फाइन आर्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानती हैं, वो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। इसके लिए मैं एक सेमिनार कराऊंगा एक दिन। मोनिक उसको बुलाएंगे, अंकिता को, कि उसने कैसे स्टडी की। और आप लोगों के लिए तो मैं हमारे जो पेंटर लगाए फाइन आर्ट के टीचर पीछे खड़े, मैं क्लास भी चेक करके आया था इनकी। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी बच्चियाँ बिल्कुल भी निराश नहीं हो। निफ्ट की एग्जाम बहुत सिंपल होती है, उसमें ड्राइंग करवाया जाता है, कुछ रिटर्न का भी होता है। और जिस बच्ची का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो जाता है तो अच्छी संस्थाओं में, तो आप ये मान करके चलिए कि कम से कम आपके साल का 20 और 25 लाख का पैकेज मिलता है।
जिसकी मैथ्स कमजोर है वो आईआईटी में नहीं जा सकती, वह डॉक्टर नहीं बन सकती, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। वह बच्ची +2 के साथ एग्जाम लगती है, उस एग्जाम की हम साथ साथ तैयारी भी कराएंगे और उस एग्जाम की डेट भी बताएंगे। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चियां जो मैथ्स में कमज़ोर मानती हैं अपने आप को, तो वो भी एक टैलेंट है और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में जो डिग्री या डिप्लोमा हासिल करता है उस बच्चे को बहुत शानदार पैकेज मिलते हैं, क्योंकि आज के युग में 3 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कभी बंद नहीं हो सकती। कौन कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग मटेरियल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़ा सबको पहनने के लिए जरूरत पड़ती है, तो आने वाले समय में इसमें बहुत स्कोप है, तो वो बच्चे नेट रहे। एक ऐसी लड़कियां जो ठीक ठाक हैं, जिनका रीजनिंग अच्छा है, मैथ्स में कमजोर है, उन बच्चों के लिए क्लैट और लड़कों के लिए भी क्लैट की एग्जाम लगती है। 5 साल का ये इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्स होता है और जो बच्चा अच्छी संस्थाओं से क्लैट फाइट करके एडमिशन ले लेता है उसको बड़े पैकेज मिलते हैं। करीब बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन कंपनियों में आपको लीगल एडवाइजर लगाया जाता है और वहां का वेतन कितना होता है ताजुब करोगे आप, 30 लाख 40 लाख रुपए पेमेंट होता है साल का। तो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही नहीं, बहुत सारे स्कोप है। तो उन बच्चों के लिए हम चाहेंगे कि क्लैट की बच्चों को, आर्ट के बच्चे हैं विशेषकर, या वो साइंस के बच्चे भी दे सकते हैं क्लैट का। जो नॉर्मल बच्चे हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां कम हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। और मैं पीयूष मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो क्लास है वो विधिवत लगा रही हैं, मन से लगा रही हैं और इसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा। ये पहली स्कूल है, झुंझुनू जिले की पहली स्कूल है जहां से हमने एआई को अप्लाई किया है और एजुकेशन का पार्ट बनाया है। कोई भी संस्था इस तरह से अलग से एआई की क्लास नहीं लगाती है। मैं क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के बच्चे में टैलेंट बहुत होता है, लेकिन इनको आगे बढ़ने का रास्ता है वो उसका पता नहीं होता है। तो अभी से मैंने वो रास्ता खोज लिया है। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भरमार नौकरियां होंगी जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ आप पे डॉक्टर और इंजीनियर के लिए प्रयास नहीं करें। एवरेज बच्चों को घबराए नहीं। अभिभावकों को भी नहीं पता होता है, वो अमूमन सोचते हैं कि मेरे बच्चे को मैथ्स नहीं आता है, मेरा बच्चा साइंस में कमजोर है। तो बच्चों, ये प्रकृति का नियम है, हर बच्चे में, हर इंसान में सेम क्वालिटी नहीं हो सकती। मानते हैं ना? कोई डांस में अच्छा हो सकता है, कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, कोई खेल में अच्छा हो सकता है, तो कोई अलग अलग जो फील्ड है उसमें वो जा सकता है। तो मैं, हमारी जो ऊपर की क्लासों के टीचर हैं उनसे भी मेरा परामर्श रहेगा कि आप इन बच्चों को आगे के रास्ता दिखाने के लिए मोटिवेट करें, ताकि इनके लिए जो अलग अलग स्ट्रीम खुलती हैं, अलग अलग रास्ते खुलते हैं कि 12वीं के बाद करूं तो क्या करूं। तो 10th क्लास से ही आप अपना रास्ता चुने और अपने टैलेंट को पहचाने। देखा देखी नहीं करें। हम क्या करते हैं कि एक बच्चा नीट की तैयारी करता तो सारी नीट में लग जाते हैं, कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है तो वो भी जबकि उसका उस साइड में न तो इंटरेस्ट है न टैलेंट है और वो समय खराब कर देता है। कोई बच्चा एयरफोर्स नेवी में जाना चाहता है तो +2 का बच्चा इजीली वहां जा सकता है। उसके लिए बाजार सर है, ये बहुत कुछ जानते हैं। इनसे भी कहूँगा कि कभी आपकी बड़ी क्लास में आपको एडवाइस करेंगे। तो सारे बच्चे अपने टैलेंट को पहचाने, अपने इंटरेस्ट को पहचाने और उस इंटरेस्ट में ही आगे बढ़े। अंकिता के बारे में बहुत चिंता करते थे, हमारी मैडम बहुत चिंता करती थी कि ये बच्ची मैथ्स तो इसको आता नहीं, क्या करेगी।
तो हमने डिसाइड किया, उसके टैलेंट को पहचाना और उसको उस साइड में आगे बढ़ाया और उसने उस दिशा में कामयाबी हासिल की है। आप भी ऐसा कर सकते हो। मैं आप सबके इसे आज हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु आपकी कृपा इन पर बनी रहे, सभी बच्चे आगे बढ़ें, समाज का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और एक सफल और अच्छे इंसान बने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your golden words. Please stand up, all of you.